Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 12th July 2020. So let us see which are the important articles. As earlier also we have said, some important articles on science and technology page, and we can say that FAQ page also, and some other information from this newspaper for your prelims as well as mains examination. One by one we will see for first mains and then prelims. So for mains examination, this is the important article on science and tech page, understanding forest fires and their effect on carbon emissions. So the article is talking specifically on forest fires in India. Okay. So some specific facts we can say that according to the report of Forest Survey of India, over 54% of forest cover in India is exposed to occasional fire. And which are the states which are having some fire prone, let's say forest fire prone areas? For example, northeast Indian states, or we can say MP, Odisha, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand. थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सेंट्रल इंडिया और हिमालयन स्टेट जो है, जहाँ पे हम डेसिडियस फॉरेस्ट का ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ स्पेसीज, फॉर एग्जांपल पाइन ट्रीज जो हिमालयन रीजन में, लो अल्टीट्यूड हिमालयन हिली रीजन्स में मिलते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू वी कैन से फॉरेस्ट फायर. और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी सेक्शन जो है वो भी है, या नेचुरल हजार्ड्स में भी आता है ये, ठीक है. तो those who are having geography optional, they can also take inputs from this. At the same time, this phenomenon is aggravated by human activities like villages में क्या होता है, forest cover clearance होता है, grazing की वजह से क्या होता है, more and more interference between man and forest, and because of that there can be, let's say, activities which leads to forest fire. At the same time, the decreasing forest cover is one of the factor, we can say that important interference, we can say that, of the human being in the forest area which leads to forest fires. ओके, फॉरेस्ट क्लियरेंस जब होता है तो वो तब क्या कर देते हैं, आग लगा के दे देते हैं, ठीक है. या फिर कुछ एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, या फिर हम उसको इंडिया में क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन, ठीक है. तो झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको प्रैक्टिस किया जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर, लेट्स से, हैविंग लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया. Okay, at the same time we need to understand the impact of this forest fire on the atmosphere. For example, here it is talking about a sharp increase in carbon monoxide, nitrous oxide and ozone during this fire activities. At the same time, it is also talking that because of increase in air temperatures, decline in precipitation and change in land use pattern, there are increased episodes of forest fires in most of the Asian countries. So there are some natural factors like tree species and all these things. At the same time, these are some anthropogenic factors. Okay, so way forward it is talking about need to have, let's say, advanced machine learning models and AI based techniques for the prediction of these forest fires. Okay, so identifying forest fire hotspots and forecasting the fire location, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. अब ये एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर्स हुए थे, ठीक है, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है. ये दिसंबर जनवरी में जो बुश फायर्स हुए थे लार्ज स्केल, तो आइदर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, डिलीनिएट द फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज विद द हेल्प ऑफ मैप होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, ठीक है. एंड एनालाइज द कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया. ये आपको कॉजेस बोथ नेचुरल और मैन मेड मिलेंगे, और आप छोटा सा वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं कंक्लूजन. फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. यस, तो ये आर्टिकल में हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उन्होंने एक सिविल सर्वेंट्स के लिए मैसेज दिया है. तो हमारे लिए क्या मैसेज है एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ क्या क्या होती है. बहुत सारे वैल्यूज़ होती है, उनमें यहाँ पे जो नोट की गई है आर्टिकल में, तो उसमें से है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं वेस्ट बंगाल में, और उसकी वजह से उन्होंने इस पर फोकस किया है. देखो,
पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जिसको हम बोलते हैं कि मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वैल्यू बोली थी, ये सिविल सर्वेंट शुड बी न्यूट्रल टुवर्ड्स गवर्नमेंट डिसीजंस, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. At the same time, other values like accountability, transparency, commitment to constitutional and democratic values, discipline, professionalism, dedication to service. तो ये कुछ important values यहाँ पे mention किए गए हैं, आपने ये use करनी है आपके ethics paper के लिए. ठीक है, moving on, next article, US president commutes 8 prison sentence. अब ये एक reference लेके हम इंडिया के president के क्या क्या pardoning powers है तो ये देख सकते हैं. ठीक है, हमें इसकी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स क्या है हमारा. रादर विल कंपेयर द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर्स एंड गवर्नेंस पार्डनिंग पावर्स. विल सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर गिवन इन आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए. ठीक है, मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है या फिर पेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग पता होना चाहिए. तो क्या क्या मीनिंग है. पार्डन मतलब क्या होता है, कंप्लीटली एब्सॉल्विंग द लेट्स से सेंटेंस. ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस खारिज कर देना या उनको फ्री कर देना जो होता है. ठीक है, ऑफेंडर या हम बोलते हैं, तो वो सारा सेंटेंस जो है वो खारिज किया जाता है, पार्डन करना मतलब. उसके बाद कम्यूट करना, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट कम्यूट्स, यानी कि क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वन लेट्स से सेंटेंस फॉर अनदर. In simple words, we can give the example for like rigorous imprisonment can be let's say exchanged for simple imprisonment. ठीक है, तो वो कम कर दी जाती है simple imprisonment टाइप का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि nature of punishment or nature of sentence is changed in commutation. In reprieve, what happens is there is a temporary stay on execution of that death sentence. ठीक है, तो जैसे कि कोई एक टेररिस्ट जो है समझो वो उसने पार्डन के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो पेंडिंग है, तो उसके लिए रिप्राइव किया जाता है क्योंकि वो अब तक पार्डनिंग का कोई उसके ऊपर रिप्लाई नहीं आया रहता है. ठीक है, उसके ऊपर रिप्राइव जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन लेट्स से ऑर्डर फॉर दैट. एट द सेम टाइम व्हाट इज रिस्पाइट, एज द नेम सजेस्ट, इट कैन बी गिवन फॉर लेसर पनिशमेंट फॉर स्पेशल ग्राउंड्स. फॉर एग्जाम्पल कोई दिव्यांग पर्सन है या फिर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है ऑफेंडर में, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड्स दे आर गिवन रिस्पाइट. ओके, एंड रिमिशन is keeping the nature of we can say that sentence same, reducing the we can say sentence. So time period of sentence is changed without changing the character of the sentence. ठीक है, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल के लिए था तो उसका रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने के लिए किया जाएगा, बट नेचर ऑफ द लेट्स से सेंटेंस और कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस विल बी सेम, दैट इज रिगरस. तो ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए 5 में. और उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर होता है और जो आर्टिकल 161 में और जो प्रेसिडेंट का होता है आर्टिकल 72 में, उसमें 2 बेसिक डिफरेंसेस हैं. एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको बेसिकली कि पार्डनिंग पावर्स जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के वो अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं. ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉ और लीगल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है, इसका सेंट्रल लॉज के अंडर होता है, प्रेसिडेंट का सेंट्रल लॉज के अंडर होता है, तो गवर्नर का जो होता है वो स्टेट लॉज के अंडर होता है. यानी कि जो सेंटेंस मिला है वो स्टेट लॉ के अंडर है या सेंट्रल लॉ के अंडर है, उसके हिसाब से उनके पार्डनिंग पावर्स. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में. लाइक प्रेसिडेंट कैन पार्डन द सेंटेंस विच इज गिवन बाय कोर्ट मार्शल, however governor has no role in that. At the same time president can grant the let's say pardon to death sentences, however the governor cannot pardon the death sentences. ये 2 small differences है, तो उसी के ऊपर इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं. फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. तो रिसेंटली एक डिबेट चल रहा है, एक स्टडी आया था और अभी WHO ने उसको एक्नॉलेज किया है कि यस देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ कोविड-19 डिसीज
और उसके बारे में सम बेसिक्स हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सो व्हाट द स्टडी इज सेइंग, पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन इन पब्लिक सेटिंग्स इन वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक क्राउडेड, क्लोज्ड, पुअरली वेंटिलेटेड। तो वहाँ पे हो सकता है, जैसे हमने बताया था कि आप इंडोर भी हो कोई पब्लिक प्लेस में, या कोई ऑफिस में जाते हो गवर्नमेंट के, या कोई वर्क प्लेस पे जाते हो आप जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है, तो आपने मास्क पहन के रहना चाहिए अभी, ठीक है। तो व्हाट आर द एरोसोल्स, ठीक है। तो ये एयरबॉर्न जो है उसमें अभी दो चीज़ें हैं कि एरोसोल्स क्या होते हैं और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस किस में है, साइज में है, ठीक है। और वो जो नेचर ऑफ लेट्स से दीज लेट्स से पार्टिकल्स, जैसे कि वो हवा में एक बार एक्सपल्शन करने के बाद वो कितने देर तक हवा में रहते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो साइज में क्या है, एरोसोल्स आर मच स्मॉलर इन साइज, ठीक है। क्या होता है 5 माइक्रॉन्स और उससे भी कम वाले होते हैं, उनको हम एरोसोल्स बोलते हैं। और उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो उससे भी साइज में बड़े होते हैं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस, जो हम खांसते हैं ना, छींकते हैं और खांसते हैं, स्नीजिंग एंड कफिंग, वहाँ से जो आते हैं उनको बोला गया है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और जो एरोसोल्स होते हैं, तो एरोसोल्स तो नेचुरल भी होते हैं, लाइक डस्ट है, मिस्ट है, या फिर स्मोक है, जैसे कहीं से भी स्मोक आता है, फायर से भी, तो वो स्मोक जो है उसको भी एरोसोल बोला गया है। या फिर मैनमेड जो होते हैं, जैसे कि हम परफ्यूम देखा जाए तो परफ्यूम हम, या फिर डीओ स्प्रे करते हैं, राइट, तो वो जो मिस्ट तैयार होता है छोटा सा, तो वो बेसिकली एरोसोल्स को वो रिलीज करता है हवा में। तो ये चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए दोनों में। तो डिफरेंस एक तो साइज में है, दूसरा ये चीज़ है कि एरोसोल टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम टू ड्रॉप ऑन द फ्लोर एज कंपेयर टू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ओके, सो we need to understand that they are expelled through a forceful act like respiratory droplets through sneezing and coughing। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको दोनों में अभी समझ गया होगा। आपके प्रीलिम्स में एग्जाम के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख सकते हैं आप, like aerosols are smaller in size or quickly settle on the ground, or even aerosols are released into atmosphere due to man-made activities only। तो ये नहीं है, तो इसमें क्या है, नेचुरल प्लस मैन-मेड, दोनों चीज़ें जो है, दोनों सोर्सेस है उसके। फाइन, सो मूविंग ऑन, इंडियाज टाइगर सेंसस ऑफ 2018 सेट्स ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये हमने फॉलोअप के लिए न्यूज़ ली है, ठीक है। 2018 का अभी आने के चांसेस थोड़े कम है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ दिस टाइम काउंट कितना है, 2967 टाइगर्स हमारा टोटल काउंट है। और वो वर्ल्ड में हमारा जो टोटल टाइगर पॉपुलेशन जो है 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। एट द सेम टाइम ये क्यों हमें बता रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है, इसकी वजह से। तो ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कैमरा ट्रैप्स वेयर लेट्स से cameras were let's say located at particular places, sites, and then the images were captured, and then through the stripe pattern recognition software their stripes were analyzed. You need to understand that these tigers they have unique stripe patterns. Every tiger has unique stripe patterns, and उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उसका एनालिसिस करके हम ये सब समझते हैं कि नंबर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको मेंस में भी टाइगर सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये फेजेस उसके क्या है, 1 2 3 4 फेजेस होते हैं, तो वो फेजेस में क्या क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट जो सॉरी साइंस एंड टेक का जो पेज है उसके ऊपर जो आर्टिकल है, आसाम कीलबैक स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 129 ईयर्स। तो कुछ स्पेसीज होते हैं जो उनका एक तो नया डिस्कवरी होता है या फिर वो बहुत सालों के बाद मिलते हैं, तो आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आसाम कीलबैक जो फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम 1869 में इंडिया में पाया गया था। इट इज़ एंडेमिक टू अपर आसाम रीजन वेयर शिवसागर इन अपर आसाम एंड पोबा इन आसाम अरुणाचल बॉर्डर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उसको एंडेमिक है,
ठीक है, तो इसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन है। IUCN कैटेगराइजेशन जो है उसको डेटा इनसफिशिएंट बोला गया है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आसाम कील बैग के ऊपर आपको होनी चाहिए। फाइन, सो दिस वाज अबाउट टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। For further information regarding editorial discussion classes wherein in-depth analysis of men's related issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.